So today we are going to understand the concept of a pointers in C++. A pointer is a variable whose value is the address of another variable. Pointers are used in a C++ program to access the memory and manipulate the address. Before understanding the concept of a pointer, you should know the concept of addresses in C++. So to understand pointers, you should first know how data is stored on the computer. कि लेट्स से जो आप वेरिएबल्स वगैरह बनाते हो ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाके सेव किस तरीके से होते हैं. Each variable you create in your program is assigned a location in the computer memory. अगर आप एक इंटीजर a डिक्लेयर करते हो तो that a is going to take some computer memory. The value the variable store is actually stored in the location assigned. Let's understand this definition with the help of a diagram. Let's say यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल को आपने कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज करा इंटी a इज इक्वल टू 10. अब कंप्यूटर मेमोरी में ये मेरा a वेरिएबल किस तरीके से स्टोर होगा. कंप्यूटर इज गोइंग टू क्रिएट अ मेमोरी लोकेशन फॉर योर वेरिएबल a. सो यू कैन से दैट दिस इज माय वेरिएबल a. इसकी वैल्यू क्या है. लेट्स से इसकी वैल्यू है 10 और इसका ना कुछ एक एड्रेस होगा. लेट्स से यहाँ पर मैं एक रैंडमली एड्रेस ले रहा हूँ. सपोज करो मैंने इसका एड्रेस डाल लिया 123 विच इज गोइंग टू बी द एड्रेस. तो कंप्यूटर मेमोरी में आपका एक वेरिएबल कुछ इस तरीके से सेव होता है. सबसे पहले आता है आपके वेरिएबल का नेम, उसकी फिर वैल्यू और फिर एड्रेस. Now to know where the data is stored, C++ has an operator called as AND. So you can make a use of this operator in order to make a use, or let's say if you want to see कि what is the memory address of my variable. अगर आपने प्रोग्राम्स में कोई वेरिएबल्स बनाए और अगर आपको उनका एड्रेस चाहिए so what you can do is you can make a use of this ampersand operator. This AND is actually called as a reference operator. इस वाले ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं. A reference operator. It is going to give you the address occupied by your variable. So let me just show you it with the help of an example. So in this program I am going to declare 3 variables. So let's say मैंने एक variable बनाया integer var1 and I am going to assign this value 100. एक और मैंने variable बनाया integer var2. I am going to assign this variable a value variable2 integer var3 और इसको मैंने assign कर दी value 300. Now in order to check the addresses of these 3 variables, what you have to do is you have to make a use of your reference operator. Okay, so let's say I am going to make a use of slash n address of var1 and here I am going to make a use of my reference operator, and after that you have to specify the name of your variable. So I am just simply copying this line. So यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 3, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3. 3 वेरिएबल्स मैंने किस लिए डिक्लेयर करे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा. सो क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. सो नाउ यू विल गेट द एड्रेसेस ऑफ योर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड वेरिएबल 3. अंडरस्टूड. सो नाउ you can make a use of this reference operator in order to get the memory address of your variable. So let's say the 0x in the beginning represent the address is in a hexadecimal form. तो यहाँ पर ये जो एड्रेस आ रहा है actually this address is in a hexadecimal form. Notice that first address differs from the second by 4 bytes. अगर यहाँ पर let's say एक C है, इसकी hexadecimal representation मैं अभी आपको बताया था. तो यहाँ पर अगर 8 है तो दूसरे वाले का साइज आपका 4 से डिफरेंट है. ऐसा क्यों है. बिकॉज द साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज 4 बाइट्स इन 64-bit सिस्टम. सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एड्रेस. अगर आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो देन यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल्स. अ पॉइंटर वेरिएबल्स आर अ वेरिएबल्स दैट पॉइंट्स टू द मेमोरी एड्रेस. ऐसा वेरिएबल होता है जो किसकी तरफ आपको मतलब रेफर करता है, आपको करता है किसी मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट करेगा. इन ऑर्डर टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ डेटा टाइप let's say, or here you have to make a use of this star, and after that you can specify the name of your
पॉइंटर, और आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो, बोथ आर वैलिड डिक्लेरेशन इन ऑर्डर टू डिक्लेयर वेरिएबल एज अ पॉइंटर वेरिएबल. So the statement above defines a pointer variable p. Now this variable p is going to hold the memory address. ये p क्या hold करेगा? memory address को hold करेगा. Actually this sign is called as an asterisk sign, and actually this sign is also called as a dereference operator, which means pointer to, कि किसकी तरफ ये point कर रहा है. Here pointer p is a pointer to a type integer, that is it is pointing to an integer value in the memory address. Okay. So now let's consider this with the help of an example. एक प्रोग्राम करके देखते हैं pointer variable का और address से related. So I'm going to create a new project in my code blocks. So in this program we are going to demonstrate the working of your pointers and memory addresses. In this integer main I'm going to declare two variables. एक मैंने बना लिया पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, तो वो here I am going to make a use of a star ptr. This is the name of my pointer variable. After that I am going to declare an another variable, और उस वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया लेट्स से नाउ. ये लेट्स से मैं ले लेता हूँ वेरिएबल नाम. सो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करा है, एक पॉइंटर टाइप का और एक वेरिएबल टाइप का. So here I am going to initialize my variable with a value 12. मैंने एक वेरिएबल वैल्यू से इनिशियलाइज करा दिया 12. इन ऑर्डर टू डिस्प्ले लेट्स से मैं यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, एंड आई वांट टू सी द एड्रेस ऑफ माय वेरिएबल. ओके, सो लेट्स से आई एम गोइंग टू चेक द एड्रेस ऑफ माय वेरिएबल. अगर आपको एड्रेस दिखाना हो सो देन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ एम्परसेंड लेट्स से, एंड रेफरेंस ऑपरेटर आप यूज करोगे और यहाँ पर आप पास कर दोगे वेरिएबल. द नेक्स्ट स्टेप इज टू आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ माय वेरिएबल. तो लेट्स से वैल्यू ऑफ वैर. और अगर आपको वैल्यू दिखानी है तो आप किसके अकॉर्डिंग कराओगे? या लेट्स से आप नॉर्मली यहाँ पर पास कर दोगे वेरिएबल. सो लेट्स से अभी मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, मेरे को एक एड्रेस दिखा देगा वेरिएबल का और वैल्यू दिखा देगा ऑफ माय वेरिएबल. तो वेरिएबल की मैंने वैल्यू क्या ले रखी है 12, और एड्रेस जो भी आएगा मेमोरी एड्रेस को ये डिस्प्ले कर देगा. नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय पॉइंटर वेरिएबल. तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, इट इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस. तो लेट्स से इसको मैंने किसका एड्रेस स्टोर करवा दिया, इससे मैंने स्टोर करा दिया एड्रेस ऑफ माय वेरिएबल. नाउ हियर आई एम गोइंग टू सिंपली कॉपिंग दिस लाइन. Okay, और instead of this I am going to make a use of. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस है ना ptr का एड्रेस क्या क्या होगा. So I am going to make a use of a ptr statement, and instead of this and variable I am going to make a use of ptr. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वैल्यू क्या गई होगी मेरे इस ptr वाले वेरिएबल में. So I am going to make a use of this ptr, और instead of this where I am going to make a use of ptr. Okay, तो सिंपली मैंने किया इसको सेव और एग्जीक्यूट. तो एड्रेस क्या था मेरे वेरिएबल का, आप लास्ट वाले डिजिट याद करना FEA8, उसकी वैल्यू क्या थी 12. PTR का एड्रेस क्या है FEAC, और उसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअली दिस वैल्यू इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ योर वेरिएबल वेयर. उसका ये क्या है, मेमोरी एड्रेस ये होल्ड कर रहा था. सो लेट्स से PTR यहाँ पर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, और पॉइंटर वेरिएबल क्या होल्ड करता है, मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है. इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस PTR, सपोज करो अभी हुआ क्या होगा, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल का नाम आपने दे दिया है वेर. दिस इज द नेम ऑफ योर वेरिएबल वेर, और आपने इसकी वैल्यू क्या असाइन करी है 12. सपोज करो इसका एड्रेस मैंने एक रैंडमली ले लिया 1 2 3. आपने एक और वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल का आपने क्या नाम दिया है PTR. दिस इज द नेम ऑफ योर वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल. अब इस वाले का भी कोई ना कोई एड्रेस गया होगा 4 5 6 कुछ ना कुछ एड्रेस इसको भी एलोकेट हुआ होगा, बट दिस PTR इज गोइंग टू होल्ड द एड्रेस ऑफ योर वेरिएबल. तो यहाँ पर वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा 1 2 3. ओके,
So now here I am going to make a use of a dereference operator. What this dereference operator will do, it is going to show you the value. ये कौन सी वैल्यू दिखाएगा कि इस एड्रेस के पास कौन सी वैल्यू है. कौन सा साइन आपका dereference operator. So whenever you are going to put here a dereference operator, it is going to show you the value of that address. तो आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 12, क्योंकि आपके इस वाले एड्रेस के पास वैल्यू क्या है 12. So this is a concept of your reference operator and a dereference operator. तो reference operator आपका कौन सा होता है, this and sign, और dereference operator होता है आपका this pointer. So understood the concept of a pointer.